Hey guys, welcome back to my channel. I am Anushka Gupta and I am scoring 650 in NEET 2022. So मेरे पास काफ़ी लोगों के messages आए that I don't know where to start. मुझे कौन सी books से start करना चाहिए, मुझे कौन सी books पढ़नी चाहिए. So I thought why not end this once and for all. So today I'm going to tell you all the books that I personally used for my NEET preparation. And video end तक देखना because I'm going to tell you what the books are and how to use them perfectly to score 650 plus in your NEET 2023 or 24. So I'm starting with physics, and to start you need a good teacher and his notes. The notes are the only thing जिनसे तुम पढ़ने वाले हो physics and physical chemistry as well. तो वो notes are the first thing जिनसे तुम पढ़ोगे. Second, for modern physics you need the physics NCERT. I did not do the NCERT for any other chapters, but for modern physics you need to go through the NCERT once. Apart from that, for numericals and the practice, I did Allen modules. एंड मैं इसके अंदर 3 एक्सरसाइजेज होती हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज इज टॉपिक वाइज और द कंटेंट वाइज, एंड सेकेंड एक्सरसाइज हैज द questions, previous year questions, and the third exercise has a little advanced questions. I used to do the first exercise and the second exercise, and for some topics or some chapters I have done the third exercise as well. Apart from that, you need 33 years previous year question book chapter wise, and you need to do this very thoroughly. इसके अंदर solutions भी हैं. I prefer you go for MTG, no paid promotions, but MTG is what I found to be the best book. So you need to do the previous year questions. उनसे आपको idea लग जाएगा कि आपको कैसे questions NEET में मिलने वाले हैं. Apart from that, if you need an extra book, please do not go for any extra books like S.C. Verma, Dinesh or any other book. I would suggest, if you want extra questions, go for JEE Mains previous year question book, and like for whatever topic you feel you don't have the confidence in, ये book मैंने कुछ chapters के लिए खुद personally भी solve की है. एंड काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिपीट होते हैं इन डिफरेंट एग्जाम्स, एंड जेई के काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो नीट के अंदर वापस रिपीट होते हैं. सो दिस कुड रियली हेल्प. सो नाउ आई विल बिगिन विद केमिस्ट्री. फॉर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में अ लॉट ऑफ पीपल रेकमेंड कि एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है, बट देयर इज़ वन थिंग. फॉर सम चैप्टर्स लाइक सरफेस केमिस्ट्री यू डेफिनेटली नीड टू रीड द एनसीईआरटी, एंड आई रेड इट माई सेल्फ. उसके अलावा 12th के जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनके लिए आई वुड सजेस्ट गो थ्रू दी एनसीईआरटी एटलीस्ट वंस, बिकॉज काफ़ी सारे थियोरेटिकल पैराग्राफ्स एंड पोर्शंस होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स के अंदर भी जो लोग इग्नोर कर देते हैं. 2019 में देयर वाज वन क्वेश्चन दैट केम फ्रॉम द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. सॉल्यूशंस चैप्टर में आई फाउंड इट, एंड आई वाज वेरी happy that I did read the NCERT for physical chemistry as well once at least. So that is what you need. And other than that, for physical chemistry, follow your notes. And also then I did the module for physical chemistry, and you need to do the questions as many as you can. I also did the previous year questions, the 33 years chapter wise MTG previous year questions for physical chemistry. Then this is sufficient for physical chemistry. कोई extra questions करने हैं then attempt tests. The maximum number of tests you can attempt. For inorganic chemistry, I did this module once, like when हम लोग को school मतलब coaching में कराए गए थे. I did the module. I marked everything in this, and then I did read the NCERT, and in the end for the last few months only NCERT for inorganic. You really need to read the NCERT for chemistry. And for organic chemistry, follow your teacher's notes and do the NCERT once.
एंड देन जो नोट्स होते हैं उसके एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए फॉर ऑर्गेनिक एंड फॉलो देम. सो योर नोट्स एंड एनसीईआरटी होल्ड दी ओनली. फॉर क्वेश्चंस आई अगेन डिड द एलन मॉड्यूल. जितनी भी एक्सरसाइजेज उसमें थी, द क्वेश्चंस आर अ लिटिल लेस फॉर ऑर्गेनिक. So if you want, you can do fingertips. I did not do fingertips myself, but a lot of my friends did, and I think that was good for them. So you can do fingertips if you want for chemistry and if you need more questions. But I used to give tests. So for biology, like everybody says, NCERT and NCERT and NCERT is only must. You should be thorough with all that is written in this. मतलब NCERT की एक भी लाइन and even the intros and the scientist का information to everything, NCERT is just a must. उसके अलावा कोई भी book you do not need. And I did the NCERTs. Apart from that, NCERT based revision की एक बुक थी हमारे पास, NCR करके, which is एलन के मटेरियल में मिलती है फॉर रिवीजन. फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स व्हाट यू कैन डू इज दिस हैज लाइंस ऑफ एनसीईआरटीज एज यू कैन सी. एंड ये जो लाइंस होती हैं ये प्योरली एनसीईआरटी की लाइंस है. सो यू कैन गो थ्रू दिस एज वेल फॉर रिविजन ओनली. एंड आई हैड दिस फिंगर टिप्स and I did the NCERT based questions out of this for practice. Apart from this, questions, if you do a little less compared to physics and chemistry, you need much more revision. So NCERT को बार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार NCERT पढ़ो. फॉर क्वेश्चंस अपने टेस्ट्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको अटेम्प्ट करो. इसके अलावा मैंने किसी भी I do not have the 33 years previous year book because I cannot find it right now, but I did that as well for the MTG 33 years previous year question book. I did that as well. So this is all for bio. इसके अलावा if you need more questions, if you need everyday practice, मैंने पर्सनली YouTube के ऊपर कुछ टीचर्स होते हैं जिनके क्वेश्चंस के लेक्चर्स होते हैं, मैंने वो फॉलो किए हैं. व्हेन आई यूज्ड टू ईट माय लंच और डिनर अपने रूम में, एंड आई हैड दिस 15 minutes टाइम हियर एंड देयर, आई यूज्ड टू डू इज मैंने एक वीडियो खोल लिया जिसके अंदर क्वेश्चंस हो रहे हैं, एंड देन पॉज करके या फिर जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन एंड थिंकिंग अबाउट द आंसर, ऐसे करके मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया एक दिन के अंदर. एंड मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं लगाई हैं, बहुत ज़्यादा बैठ के एक जगह पे क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं. व्हेन other people do a lot of extra books, I have not done any extra book in both my years for 12th and for my drop year as well. You do not need any more books than these. And so there is one more recommendation, NCERT exemplar, that a lot of people say there is. I did not do it personally because I did not get the time. मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था लास्ट 2-3 महीनों में उसे करने का. एंड इट वॉज ऑन माई लिस्ट, आई हैड टू डू इट. मैंने कुछ वीडियोस से बायो की NCERT एग्जाम्पलर की कुछ वीडियोस कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स की आई थिंक किए हैं, बट नॉट, आई डिड नॉट हैव इट इन मी. सो यू कैन डू दैट एज वेल फॉर बायो एंड केमिस्ट्री एंड आई थिंक फिजिक्स एज वेल. कई लोग फिंगर टिप्स फॉलो करना चाहते हैं, मैंने सिर्फ बायो की फिंगर टिप्स फॉलो की थी. कई लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स की फिंगर टिप्स भी फॉलो करते हैं. आप देख सकते हो अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, बट आई थिंक दीज आर सफिशिएंट. आई डिड द मॉड्यूल्स. इफ यू डू नॉट हैव एलन मॉड्यूल्स, यू कैन यूज एनी अदर कोचिंग मॉड्यूल्स विच इज रिकमेंडेड. पर्सनली एलन के मॉड्यूल्स आर गुड इनफ एंड दे आर सफिशिएंट with the first exercise and the second exercise, so I used them. So this was all the books. Apart from this, if you want, in the end, जब लास्ट फ्यू मंथ्स होते हैं यू नीड रिविजन. सो तब हम लोग को एलन की तरफ से ये हैंड बुक्स मिलती हैं. दिस इज केमिस्ट्री हैंड बुक एंड दिस इज द फिजिक्स हैंड बुक. एंड फॉर बायो यू हैव द NCR दैट आई मेंशन. इसके अलावा जस्ट मेक दिस स्मॉल short notes by yourself. I had these books and everything. जब टाइम मिले, rather than going for extra material or different books,
गो फॉर रिविजन, गो एंड मेक सम शॉर्ट नोट्स फॉर योर सेल्फ जो तुमको बाद में रिविजन के लिए काम आएंगे। वो एक्स्ट्रा बुक्स को तुम दोबारा रिविजिट कर भी नहीं पाओगे एंड में। तो जितना कम रिसोर्सेज रखोगे, जितनी कम बुक्स रखोगे, जितना कंसाइज रखोगे अपना मैटर, उतना तुमको लास्ट 2 या 3 महीने में हेल्प मिलेगी, बिकॉज यू विल नॉट गेट पैनिक्ड। As you can see, only these are the books for 2 years, for 2 whole years you need only these many books, and इसके साथ तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा। क्वेश्चंस के लिए गिव टेस्ट, जितना हो सके टेस्ट दो, अपनी कोचिंग का दो, अपने फ्रेंड्स की कोचिंग का दो, टेलीग्राम या फिर तुमको जहाँ भी ऑनलाइन में टेस्ट मिल जाए टेस्ट दो, बिकॉज उससे तुम्हारी एग्जाम प्रैक्टिस भी होती है एंड क्वेश्चंस भी तुमको अल्टीमेटली बहुत सारे मिल जाएंगे। सो डू दिस दोज क्वेश्चंस। उसके अलावा इफ यू वांट, देर आर फ्यू टीचर्स ऑन यूट्यूब एंड देर आर फ्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो कुछ क्वेश्चन सीरीज या हैंड पिक्ड क्वेश्चंस को डाल के अपनी सीरीज बनाते हैं। वो क्वेश्चंस मैंने पर्सनली बहुत फॉलो किए हैं, बिकॉज दोज टीचर्स आर पिकिंग दोज क्वेश्चंस आउट। तो वो तुम्हारी मेहनत बचा लेगा। जो क्वेश्चन तुम ढूंढ ढूंढ के करोगे और तुम्हें लगेगा शिट मैंने क्वेश्चन कर लिया बट दिस इज नॉट रेलिवेंट, सो व्हेन द टीचर पिक्स आउट दोज क्वेश्चंस फॉर यू, तुमको पता रहेगा कि हाँ ये रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, मुझे ये करने चाहिए। केमिस्ट्री के लिए भी इफ यू वांट एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन बुक, गो फॉर द जेई क्वेश्चंस, जेई मेंस क्वेश्चंस, बिकॉज इससे तुमको एक लेवल जो है वो अपने एग्जाम का लेवल मिलेगा। जेई और नीट का जो लेवल है वो तुमको मिलेगा। एक्स्ट्रा बुक्स में तुम ये उस क्वेश्चन की रेलेवेंस नहीं ढूंढ पाओगे। सो डोंट गो फॉर एच सी वर्मा, डोंट, इट्स नॉट लाइक दीज आर बैड बुक्स और दीज आर नॉट अप्रोप्रिएट बुक्स, बट हमारे एग्जाम के लिए, नीट के लिए जो सिलेबस है उसके लिए ये बुक्स उतनी रेलिवेंट नहीं है, और उसमें जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो ढूंढने में तुम लोग का बहुत टाइम जाएगा। सो दीज आर ऑल दी बुक्स एंड यू कैन यूज दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एज वेल। उसके अलावा just focus on doing all these books again and again rather than going for different books या ज़्यादा time to new material. Go for this material, fixed material again and again and again. So that is it for this video. If you want my NCERT highlights for physical chemistry or for modern physics or any other subject, do comment down below. I will surely check it out. If you haven't already, go follow me on Instagram and follow the Telegram channel as well for more updates, and I'm going to send the full chapter notes very soon on it. Do check it out. I will see you in the next one. Till then.